values of x and y here, because here x and y are the variables and we are interested to find out the values of that variable. Very simple one. How to do that one? याला कैसा करते हैं? We can keep here x plus 2y means real part and 2x minus 3y into y means imaginary part. तो ये साइड का जो हो गया, ये अपना हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर. Okay. Now to this side pi is a real number. Okay. Pi is a real number and 4i is a pi is a real number and 4i is an imaginary number. It goes to that side, it becomes minus 4i. So now here the two complex numbers are equal, and then by equality of two complex number we got the two equations. Then solving these two equations we got the values of x and y is there. Same method is there. So what we done here, see now. इसको नहीं समझा वो देखो कैसे करेंगे. Condition is very simple one. X plus 2y plus 2x minus 3y into I is equal to, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे bo के जगह पे एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए मगर अपन डायरेक्ट करेंगे. 4i plus goes to that side, it becomes minus 4i is there. So what happens now? If you observe this side, it is one complex number, real plus imaginary, real and imaginary. So whenever the two complex number are equal, आता बघा, real plus imaginary one complex number and it is again of the form of complex number. हे बघा, तुम्ही म्हणताल सर मध्ये मायनस आहे, मायनस असेल तर काय अडचण नाही. बघा का, can we write pi minus 4i as a 5 plus of minus 4i is there. Actual complex number ऐसा, because of the plus minus you got here minus is there. So actual it is nothing but it is your complex number is there. There it is of the type 5 plus minus 4i is there. Okay, so we can say that on LHS there is a complex number, on RHS there is also a complex number, and whenever the two complex number are equal, then the real part of that complex number is equal to real part of that complex number, and imaginary part of that complex number is equal to imaginary part of that complex number. So what we can say that by equality of complex number, what we can say that here complex number के हिसाब से it is a real part x plus 2y, it is a real part 5. So first equation we got here x plus 2y is equal to 5. Call it equation number 1. Now 2x minus 3y into I, multiplication with I, it is an imaginary part, and 4 into I, it is a multiplication with I, imaginary part. So you are getting imaginary part is equal to imaginary part. So this I gets cancelled. What we got here only 2x minus 3y is equal to, here is minus 4 is there. Call it the equation number 2 is there. है ना? अभी बताया मैंने ये प्लस का 4i इधर गया तो 5 minus 4i को तुम कैसे लिखेंगे? It can be written as 5 plus of minus 4i is there. It means here imaginary part is a minus 4i is there. So this I and this I cancel. So imaginary part is nothing but minus 4 is there. So as we got here two equations and as we know how to solve that equation, ये अपने को मालूम है कैसा solve करते हैं simultaneous equation. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, multiply 1 by 3 and multiply 2 by 2 is there. So we got the value of x. Put the value of x in equation number 1. You got the value of y. Very simple one. करून दाखव तो बघा. 3 ने याला मल्टीप्लाई केलं तर याला 3x plus 6y is equal to 50. इसको अगर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4x minus 6y is equal to minus 8 is there. So what happens now? Plus 6y getting cancelled with minus 6y. 3 plus 4 7x. और ये 15 में से 8 गया 7. So what is the value of x? 7x equal to 7. So x is equal to what? 1 is there. And now put the value of x in equation number 1. You got the value of y is there. Therefore 1 implies. 1 equation का क्या होगा? इसमें रखने के बाद ये हो गया 1 plus 2y is equal to 5. So 2y is equal to 5 minus 4 means 2y is equal to 4 is there. So y is equal to 2 is there. So the answer of that question is nothing but x is equal to 1 and y is equal to 2 is there. So it is very simple one. X is equal to 1 and y is equal to 2 is there. हे क्वेश्चन याच्यापुढे पण महत्त्वाचे आहे की या टाइपवर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन सुद्धा विचारले जातात. म्हणजे हाच क्वेश्चन दिस वन इट इज the value of x and y किंवा if x plus 2y plus 2x minus 3y into y plus 4y is equal to 5 comma then the values of x comma y are option दिले असतात तुम्हाला
जैसे याच्यामध्ये आला x is equal to 1 y is equal to 2 ऑप्शन मध्ये असेल x is equal to -1 y is equal to -2 x is equal to 1 y is equal to -2 and same one x is equal to 1 and y is equal to यहाँ पे -1 और y is equal to 2 is there. असे ऑप्शन येतात. तर अशी जरी ऑप्शन आली ना तर आपल्याला काय करावं लागेल सॉल्व करून त्याचा आन्सर काढावा लागेल and by getting the answer here the values of x is equal to 1 y is equal to 2 so the option number A is correct one for that one. So it is the method of doing that one. हा जरी बोर्ड मध्ये क्वेश्चन असेल तर याच क्वेश्चनला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये असा कन्वर्ट करून विचारू शकता x y ची व्हॅल्यू काढा म्हणून. ओके सो समजलं पहिल्यापासून काय केलं हा रियल आणि हा इमॅजिनरी पार्ट आहे या कॉम्प्लेक्स नंबरला या ठिकाणी ठेवलं प्लस का 4 आए उधर जाने के बाद माइनस का 4 आए तो ये बात अभी आप यहाँ रखो 5 minus 4 is nothing but it is a complex number because we can write in terms of complex number it is nothing but 5 plus of minus 4i plus minus actually it is a minus is there so on this side it is a one complex number and the another side there is a one complex number so by equating the real part x plus 2i is equal to 5 is the real part 2x minus 3y is the imaginary part is there is nothing but minus 4i so this I and this I cancel it is only minus 4 is there afterward we got two simultaneous equation and we know that how to solve that simultaneous equation by multiplying equation number 3 1 by 3 and equation 2 by 2 so what we got here we got the values here y gets cancelled the value of x is equal to 1 and the value of y is equal to it is nothing but 2 is there so this similar type of question asking objective also ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता ये माइनस से क्वेश्चन कैसा रहेगा इफ ये ऐसी कंडीशन है तो वैल्यू ऑफ x एंड y एंड द ऑप्शंस आर समथिंग लाइक टू दैट ओके तो ये टाइप पे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है अब हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीएनओ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दूसरे बुक में ये जो क्वेश्चंस है बोर्ड के बुक में डिस्क्रिप्टिव में दिया हुआ है और तुम अदर बुक्स में देखो ये क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में बना के दिया हुआ है ठीक है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है एक्स वाई की वैल्यू निकालने का मगर क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग है ये थोड़ा सिंपल था अब देखो क्वेश्चन इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का पूछेगा तो अपन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी दिस क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन हियर x plus 1 upon 1 plus I plus y minus 1 upon 1 minus I is equal to I is there and now we are interested to find out the values of x and y here ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता तो इसमें अपन जैसा अपन हमेशा करते हैं उस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे हाउ टू सॉल्व दैट वन वेरी सिंपल वन देखो यहाँ पे इसको सिंपल वे से सॉल्व करेंगे पहले see now how to solve such type of question if it is asked in examination so see here now how to solve that type of questions so in that one we started the question here x plus 1 upon 1 plus I question check here x plus 1 upon 1 plus I plus y minus 1 upon 1 minus I is equal to I is there okay so let's start now how to solve that one very simple one first we do the cross multiplication here what is the cross multiplication x plus 1 into 1 minus I plus y minus 1 into 1 plus I divided by here it is nothing but 1 plus I into 1 minus I is there okay and that is equal to I is there so now let's start now what happens now here ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे अपन x into 1 x into I minus ix is there plus 1 into 1 minus 1 into I is there multiplication तो सबको आएगा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं plus y into 1 y is there y into I is there minus 1 into 1 minus 1 again minus plus minus it is I is there and now divided by whole divided by it is nothing but a plus b a minus b it is nothing but of the form a plus b a minus b how to write that one a square minus b square a is 1 का square 1 फार्मूले का minus b is nothing but I का square और यहाँ पे क्या है it is equal to I is there okay
Now let us solve it. How to solve that one? In that one, collect the real part and imaginary part for making a one complex number. इसमें क्या करेंगे अपन? जैसे कि देखो x रियल पार्ट, पहले देखो कुछ कैंसिल होता क्या? यस, प्लस का 1, दिस इज अ प्लस 1, कैंसिल विद दिस माइनस 1, ये कैंसिल हो गया. अब देखो रियल पार्ट कौन सा है इसमें? x रियल पार्ट है, y रियल पार्ट है, बस दो ही पार्ट है. तो रियल पार्ट क्या करेंगे हम? एक ब्रैकेट में. We can write here real part in one bracket, x plus y is there. Okay. Now if you proceed to next one, what is the imaginary part of that one? See now, minus का ix, minus का I, and then plus का yi, and again minus I. तो पहले सबसे पहले ये minus I. What happens now here? minus 2i is there. Okay. So यहाँ पे अपन ऐसे करेंगे. From that one we can take here प्लस आई कॉमन. ये सब में से प्लस आई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का x और यहाँ पे कितना? प्लस का y. समझा लेकिन क्या साइन होगा? If you taken I common here, then you are remaining here minus x. Then iy is there, so plus y, I common. And now here minus I minus 2i. So we can write here minus 2 only because minus 2 into I, it is nothing but minus 2i is there. प्रॉब्लम इस स्टेप वाली का यामध्ये काय केलं आपण? रियल पार्ट, x is the real part, y is the real part, right? Written in one bracket. Now collecting the imaginary part, जिसको I मल्टीप्लिकेशन में वो पार्ट कलेक्ट करे अपन ने. तो सबसे पहले माइनस आई एक्स है. कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में रहता? x प्लस आई वाई के फॉर्म में. इसलिए अपन ने क्या लिया? प्लस आई कॉमन लिए. सब में से प्लस आई कॉमन, इसमें से आई कॉमन, इसमें से आई कॉमन और ये माइनस आई में से आई कॉमन. प्लस आई इधर कॉमन काढला, इथे काय राहिला? माइनस x, बरोबर आहे? माइनस आई एक्स आला. इथे काय? प्लस चा आई वाय, इथे काय लिहिलं? प्लस y इनटू आई वाय. माइनस आई माइनस 2i मल्टीप्लाई केलं तर दिस वन. ओके. नाउ होल डिवाइडेड बाय, as we know that what is the value of this I square? I square is nothing but minus 1. तो क्या होगा? देखो ये माइनस फॉर्मूले का और इसकी वैल्यू minus 1. I square की वैल्यू minus 1 तो it can be written as 1 plus 1. देखो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, एक से दो स्टेप कम करेंगे अपन. See now, फॉर्मूले का माइनस, I square की वैल्यू minus 1. So this minus become plus. तो ये कितना हो गया? 1 plus 1. So you know that 1 plus 1 is nothing but directly you can write it is nothing but 2 is there. इस स्टेप वाली का बघा एकदा पुन्हा. हा 1 फॉर्म्युलेचा मायनस I स्क्वेअर ची व्हॅल्यू -1. तर हा मायनस काय झाला? प्लस. तर 1 + 1 किती झाले? 2. यू कमन डायरेक्ट that is equal to 2 is there. that is equal to किती? I. बस संपलं. So can you write this one as याला मला असं इथे का बघा. Can you write this one as x plus y plus I into minus x plus y minus 2 is equal to 2 इथे डिवीजन ला आहे, इथे मल्टिप्लिकेशन ला ना, किती बेटा मला 2i. आता बरेच मुलांना कळलं असेल व्हाट वी डू डन इन द नेक्स्ट स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बोलो? x plus y रियल पार्ट, ये कौन सा? इमेजिनरी पार्ट. म्हणजे इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन वन साइड. और ये तुमको मालूम है ये 2i इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या है? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर. सो कैन वी राइट दिस वन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x plus y plus I times minus x minus 2 is equal to, can we write this one as a 0 plus 2i? Yes, we can write it is nothing but 0 plus 2i is there. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. क्यों? तो ये कौन सा नंबर है? Purely imaginary complex number. Means here the real part is 0 and imaginary part is the 2i. So what happens now? On this side there is a one complex number and on this side there is a another complex number. So by equality of complex number, how many equations we got here? इसको थोड़ा बारीक लिखेंगे अपन. Equal to I और ये सिंबल. तो देखो, तो पहली इक्वेशन क्या मिलेंगे? by equating complex number, first equation is x plus y equal to 0. First one. Okay. It is the first equation, x plus y is equal to 0. Now the second equation, minus x plus y
minus 2 is equal to, it is nothing but 2i. So what we got here is equal to 2 is there. It is the second equation. After solving, what we got here, minus 2 goes to that side, it becomes plus 2. And it is the imaginary part. Minus x plus y minus 2, it is the imaginary part. So imaginary part is equal to imaginary part. Minus x plus y minus 2 is equal to 2 is there. So what we got here? Minus x plus y is equal to minus 2 goes to that side, 2 plus 2, it is nothing but 4 is there. Call it equation number 2. Okay. Now it is equation number 2 is there. Now how to solve? You know very well. So solving 1 and 2 by using simultaneous equation, you got the values of x and y. अब तो सिंपल है. डायरेक्ट ये दोनों की एडिशन करो. Plus का x minus का x cancel. Y plus y 2y is equal to 4. So y is equal to what? What is the value of y? Y is equal to 2 is there. है ना? Adding 1 and 2. Adding 1 and 2 करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी. Adding 1 and 2 करने से क्या होगा देखो. डायरेक्ट करेंगे जरा. Plus का x minus का x cancel. Y plus y 2y and then 0 plus 4 it is equal to 4. So what is the value of y? Y is equal to 2 is there. Simply put the value of y in equation number 1. You got the value of x. What is the value of x? X plus 2 is equal to 0 implies x is equal to minus 2 is there. So it is the final answer. The value of x is equal to minus 2 and the value of y is equal to 2 is there. अभी बताया मैंने ये सेम टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता और बहुत से किताब में बहुत से टेक्स्ट बुक में सीबीएसई लो या तुम्हारे दूसरे और पर तो सीबीएसई में तो नहीं है मगर दूसरे भी बहुत से किताबें जिसमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है ये टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछता वेरी सिंपल है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेरी सिंपल ओके अब इस पे लास्ट क्वेश्चन लेंगे फिर अपन अगले बिट की तरफ जाएंगे एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा जो एग्जाम में पूछने वाला है यहाँ के एग्जाम में नहीं पूछा है एआईसीईटी एग्जाम है उसमें पूछने वाला है सो सी एंड नाउ तो क्या है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये टाइप का फिर उसका अपन आगे जाएंगे आई थिंक ये समझ में आ गया सब पे एकदम सिंपल है वेरी सिंपल वन इज देयर सो नाउ वी प्रोसीड टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 1 then we proceed to the next part of that complex number so very last one तो देखो इसमें क्या करेंगे अभी लास्ट एग्जांपल लेंगे इसमें से क्वेश्चन ऐसा है कि x plus iy लास्ट क्वेश्चन है इसका अगर से आता हूँ तो अपन आगे जाएंगे x plus iy upon 2 plus 3i sorry plus 2 plus I divided by 2 minus 3i is equal to question is something like to 9 by 13 into 1 plus I is there. So I hope या टाइप से क्वेश्चन तुम्हारा करता ही if you do that then we proceed to the further part अगर से आता होगा तो अपन आगे जाएंगे नहीं तो फिर ये क्वेश्चन में वही x और y की वैल्यू निकालना है सेम टाइप का क्वेश्चन आस्क्ड हियर we are interested to find out the values of x and y here so if you do that then we proceed to the next one सांगा तर तुम्हाला करता येईल तर ठीक आहे नाही तर मी करून देतो हा क्वेश्चन विचारलेल्या परीक्षेमध्ये त्यामुळे इम्पॉर्टंट आहे यस एनीबॉडी हॅव यस हा क्वेश्चन करता येईल ते करून द्यायचं एनीबॉडी फ्रॉम बॉयज और गर्ल्स साइड कोणी की व्हिडिओला अनम्यूट करून सांगता येईल यस हा क्वेश्चन करून द्यायचा का ओके आय आस्किंग द क्वेश्चन टू यू तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो हा क्वेश्चन करून द्यायचा का जर येत असेल तर पुढे जाऊ आपण नाहीतर मग हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देत होतो बोला हो नाही काहीतरी सांगा अनम्यूट मेसेज करता येईल तुम्हाला किंवा बोलता पण येईल डायरेक्ट हे ऑनलाइन म्हणल्यावर त्याचा फायदा काय मग तुम्ही काहीच बोलत नाही बोलो इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं क्या सॉल्व करके देने का है यस इट इज द क्वेश्चन टू यू no need sir so one student say here the message no need so okay I will give hint in that one okay नाही आला तर मला विचारा मी ते सॉल्व करून दाखवतो ठीक आहे पहिले हिंट देऊन टाकतो तुम्हाला सेम पिछली बार किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई दिस वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये तो कौन से फॉर्म में a plus b a minus b इसको तुम सॉल्व करेंगे तो तुमको क्या होगा ये जो 13 है इसमें से दो स्टेप बता रखा है टू स्टेप्स
देखो 2 स्टेप्स कैसा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i प्लस 2 प्लस आई इंटू 2 प्लस 3i क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i इंटू 2 minus 3i there is equal to 9 by 13 into 1 plus I there. तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर बता रहा हूं, डिनोमिनेटर में क्या होगा ये रहता है अभी. In that denominator you know that it is a formula of a plus b a minus b. What is the formula for a plus b a minus b? A square minus b square. So 2 का स्क्वायर 4 फॉर्मूले के हिसाब से माइनस b क्या है तुम्हारा पूरा 3i का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और ये i का स्क्वायर और ये साइड में कितना है तुम्हारा 9 by 30 into 1 plus i. So what happens now, ये यहाँ पे देख लो खाली अभी जो i स्क्वायर है i स्क्वायर की वैल्यू -1. So this minus minus become plus. So can we write this one as a 4 plus 9? And as you know that 4 plus 9 is nothing but it is a 13 is there. तो क्या होगा ये 13 कैंसिल होगा ये 13 के साथ, राइट. दिस 13 इज कैंसिल विद दैट 13 मतलब जो डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम था वो तो चला गया. अब क्या होगा सी नाउ 2 प्लस 3 आएगा सेकंड ब्रॅकेट मध्ये नाही क्वेश्चन बरोबर आहे. x plus i y upon 2 plus 3i plus 2 plus i upon 2 minus 3i is equal to 9 by 13 to 1. करेक्ट. जर टेक्स्ट बुक मध्ये काय अडचण असेल तर करेक्ट करा क्वेश्चन मध्ये. इफ देयर इज अ प्रिंट मिस्टेक इज देयर देन इज द क्वेश्चन यू टू मॉडिफाई हियर. तो ये ओल्ड बुक में हिसाब से वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता. ये ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ओल्ड टेक्स्ट बुक में भी था मगर वो ऐसा था और इसके हिसाब से आंसर आता. If in the textbook there is a mistake is there, then you have to modify here. It is a question because this type of question we have already done in previous syllabus. जो पिछला सिलेबस था उसमें सेम क्वेश्चन था और इसके हिसाब से जो पीछे आंसर दिए वाला है टेक्स्ट बुक के वो आंसर इसके हिसाब से आता है x और y की वैल्यू के हिसाब से. न्यू टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसमें बहुत से जगह मिस्टेक से प्रिंट मिस्टेक से वो तुमको क्वेश्चन के टाइम पे सुधारना पड़ेगा. ठीक है. न्यू टेक्स्ट बुक में बहुत से जगह पे प्रिंट मिस्टेक्स है तो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पे तुमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसके हिसाब से. ओके. बहुत जगह मिस्टेक्स है 12वीं में भी है और 11th में भी. 11th 12th दोनों में हर बार बच्चों को बताना पड़ता है कि यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे मिस्टेक है होती है. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन हियर. ये क्वेश्चन करेक्ट है. यू मॉडिफाइड इन द टेक्स्ट बुक हियर. चलो तो यहाँ पे ये 13 और ये 13 क्या हो गया कैंसिल. So ये कितना आ गया 9 into 1 9 and then here 9i is there. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर. ये साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर. दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करेंगे तो कितने इक्वेशंस मिलेंगे दो इक्वेशंस. दो इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू मिलेगी x और y की वैल्यू. आई होप यू गॉट दैट वन. समजलं काय केलं आपण एकदा बघून घ्या डिनोमिनेटर मध्ये a plus b a minus b so it is nothing but a square means 4 फार्मूले का माइनस 3i का स्क्वायर मतलब 9i square is there. Now what is the value of i square? It is a -1 so this become plus so it is nothing but 4 plus 9 is a 13 so this 13 and 13 gets cancelled. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे रियल पार्ट एक ब्रैकेट में और i कॉमन निकाल के इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में. तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. 9 into 1 plus i मतलब क्या है 9 ones are 1 9 into i 9i is there. So there is a complex number to this side और इसको सॉल्व करके एक ब्रैकेट में रियल पार्ट i कॉमन निकाल के एक ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट. So this complex number is equal to this complex number. So how many equations you got here? Two equations. And after solving the equation you got the values of x and y is there. I hope you got that one. एवढे क्वेश्चन तुम्ही करून बघा. 2 ते 3 स्टेप मी तुम्हाला सांगितलं याच्या पुढे तुम्हाला इझिली सॉल्व करता येईल अशी अपेक्षा आहे. करता येईल सगळं व्हेरी सिंपल आहे याच्यामध्ये काय अडचण नाही. ओके. I hope you got that one from that one. So now we proceed to the next part of complex number. Okay. समजलं काय करायचं त्याच्यामध्ये ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रियल पार्ट एक ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, टू इक्वेशंस ही गॉट। ओके, अच्छे से बताएं। करके देखो इसके बाद, और ये 13 तो क्या हो गया, इसमें कैंसिल हो गया, यहाँ का 13 और ये दोनों को सॉल्व करने के बाद ये 13 और 13 कैंसिल। चलो, सो नाउ we proceed to the next example. Example is something like to here, ये तो हो गया, एक आखिरी एग्जांपल था। अब इसके बाद हम इसमें 11th क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, इसमें देखो ग्रुप पे एक मैसेज डालने वाला है स्टार्टिंग में कि कौन से चैप्टर में से कौन सा पोर्शन ये साल डिलीट हो गया 11th के सिलेबस में से, और ये जो बोर्ड का है उसके बाद जेई मतलब जो सीबीएसई का है उसका भी कुछ पार्ट इसमें से डिलीट होने वाला है, तो दोनों को अपने को कंपेयर करके करना पड़ेगा। फिलहाल बोर्ड के हिसाब से 2 बीट यहाँ पे से 2 से 3 बीट ये चैप्टर में से कैंसिल हो गया, उसमें इसके बाद सबसे पहला बीट है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक बीट कैंसिल हो गया इसमें से। उसके बाद सेकंड बीट कैंसिल हुआ इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, नेक्स्ट बीट ये कैंसिल हुआ इसमें से, कौन सा है, यस, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड बीट इसमें से कैंसिल हुआ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बीट इसमें से कैंसिल हो गया। ओके, तीसरा बीट इसमें से कैंसिल हुआ वो है डी मोरिस थ्योरम, डी मोरिस थ्योरम, ये भी बीट क्या हो गया, कैंसिल। आफ्टर कंप्लीटिंग द आवर लेक्चर जो भी पार्ट डिलीट हुआ पीडीएफ में वो अपन ग्रुप पे सेंड कर देंगे डबल से, ज्या मुलांना माहित नाही त्याने ते कळेल की कोणकोणते चॅप्टर मध्ये किती बीट डिलीट झाले या वर्षी ते तुम्हाला याच्यामध्ये कळून जाईल। तर लेक्चर संपलं की लागलीच मी ते मेसेज टाकून देतो, तुम्ही बघा कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये या वर्षी किती हे कॅन्सल झाले बीट। ओके, सो विदाउट एनी टाइम पास वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट। कळला, इसमें से ये 3 बीट कैंसिल है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी मोरिस थ्योरम। तो ये जो बीट्स है ये अपने को चेक करना पड़ेगा ये जेई में है क्या, अगर से जेई में है तो अपने को जेई के टाइम पे ये बीट्स लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अपन ले सकते हैं उसमें, ठीक है। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट वन, ये पार्ट छोड़ के हम अगले पार्ट की तरफ जाएंगे, इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर। ओके, आणि जर हे बीट जेई मध्ये असतील म्हणजे सीबीएसई मध्ये हे बीट कटले नसतील तर जेई मध्ये आपण ते बीट्स घेऊ, पण मला वाटतं दोघांचा जवळपास हे पण बीट कटलेला आहे, हे पण बीट कटलेला आहे, फक्त डी मोरिस थ्योरमचं माहित नाही, हे 2 बीट सीबीएसई मधून सुद्धा कटले यावर्षी। सो ओके, इसके बाद अपन लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी पीडीएफ है ते तुम्हाला मी सेंड करून टाकतो, तेच तुम्ही बघा कोणकोणत्या चॅप्टर मध्ये किती डिलीट झालेलं आहे। ओके, स्क्रीन इज ब्लर, ओके, सी नो, wait a minute here, what happens to the screen, is see now, okay, now it is not blur, is there, चलो, so फिर अगला बीट लेंगे अपन, so Argand's diagram means, as the name suggests here, Argand's is the name of mathematician, ये जो है Argand's ये है मैथमेटिशियन का नाम है, उसके नाम से ये Argand's डायग्राम है। तो Argand's ने क्या करने वाला है मैथमेटिशियन ने, जैसे कि अपने को मालूम है in 2-dimensional space if there is a point 2, 3 is present, so how to locate this point 2, 3 in terms of Cartesian coordinate system, इसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे दिखाते हैं, वेरी सिंपल, जैसे कि पॉइंट है 2 is present on x axis, so you have taken here 0, 1, 2 is there, and now this 3 is present on y axis, so what happens for here 1, 2, 3, see here now it is right one, आता बरोबर आहे का, बघा जरा व्यवस्थित। ओके, काय सांगतो बघा, पुन्हा सांगतो, जर मध्ये काही कट झाला असेल तर पुन्हा बघा, what happens like this here, जैसा अपन ये पॉइंट, if there is a point p of 2, 3 is present,
Then how to determine this 2, 3 on coordinate system? 2 is present on x-axis and 3 is present on y-axis is there. Similarly, the name Argand's diagram is nothing but it is the representation of complex number by a point in plane is called as the Argand's diagram. Definition बघा, representation of complex number by a point